हाई हेलो नमस्कार सबाई केमन आছেন আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আজ আপনাদের কাছে একদম নতুন একটা ব্যবসা নিয়ে এসেছি। বসে দাঁড়িয়ে থাকবে আপনার কাছ থেকে মাল কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এতটাই ডিমান্ড হচ্ছে আজকে এই প্রোডাক্টের। চলুন বিশদে জানবো আজকে এই বিজনেস সম্পর্কে। আমার সঙ্গে রয়েছেন একজন কোম্পানির এক্সিকিউটিভ, যিনি এই পুরো মেশিনারি বিজনেস সম্পর্কে আপনাদের একটা দারুণ ধারণা দেবে। নমস্কার দাদা। নমস্কার দাদা। আপনার পরিচয় এবং কোম্পানির পরিচয়টা যদি একটু দেন। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটা ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। मेरा नाम प्रदीप कुमार मोहंती है। मैं एमटेक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा। हमारी कंपनी 35 साल पुरानी कंपनी है। तो हम लोग अभी कितने सारे राइस मिल है और एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर डील करते हैं। अब हम इसको बायोमास पैलेट मेकिंग मशीन लेके आए हैं इंडिया में। अच्छा। जो कि अभी मार्केट में पहली वाला बिजनेस है ना। हाँ। बहुत दिन से तो नहीं हो रहा है, बहुत नया बिजनेस है, नया बिजनेस है। আপনাদের কাছে এই বিষয়টা আগে ক্লিয়ার করব যে বায়োমাস জিনিসটা কি এবং বায়োমাস প্যালেট এই জিনিসটা আজকে মার্কেটে কেন এত বেশি ডিমান্ড হচ্ছে, পুরো তথ্য देवें দাদা। দাদা একটু যদি বলে দেন। हाँ, ये जो बायोमास जो पायलट हम कंसेप्ट बोल रहे हैं, हाँ। ये बेसिकली बायो वेस्टेज से ही बनता है। जैसे बायो प्रोडक्ट वेस्टेज कैसे होता है, जैसे अपना राइस कटिंग करने के बाद जो एग्रीकल्चर वेस्ट থেকে তৈরি হয়, जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है, आपका स्ट्रॉ है, जितने भी है। हाँ। तो মানে বলি আমাদের পাট থেকে পাট কাঠিটা ওয়েস্ট, ধান থেকে খড়টা ওয়েস্ট, বা আপনার ভেজিটেবল শাকসবজি পড়ে থাকা বাজারে সেটা ওয়েস্ট। তো তার সঙ্গে গাছ, খড়, ঘাস, যে জিনিস আপনার এলাকায় ওয়েস্ট হচ্ছে সেই জিনিস দিয়েই আপনি একটা নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারবেন, যেটা প্রতি মাসে আপনাকে 1.5 লাখ টাকার উপর রোজগার দেবে। जैसे आपका लकड़ी का जो मिल लगे हैं, जो आपका वहाँ जो डस्ट मिलता है, हाँ। जो आपका 100 मिल से जो डस्ट आता है एकदम उसमें से बनाइए। মানে কারাত কল থেকে যে সমস্ত গুঁড়ো কাঠ পড়ে থাকে সেই কাঠ থেকে এই ব্যবসাটা এখানকার এই ব্যবসাটা করা যায়। और बाकी आपका राइस है, आपका व्हीट है, आपका गन्ना है, जैसे शुगर केन हो गया। हाँ। या ऐसे कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके आसपास में, बाम्बो है। हाँ। आपका बांस जो कहते हैं, नारियल का छिलका है, छिलका है। तो कुछ हाँ। भी एग्रीकल्चर कुछ भी वेस्टेज है जो आप उसको रीयूज करके आप पैलेट बनाइए। हाँ। एंड ये आपका फ्यूल एज ए फ्यूल यूज होगा। जो आपका फर्नेसेस है, हाँ। जो बॉयलर है, बाकी जहाँ भी आपका एज ए फ्यूल रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे लेंगे। आप बस उसको पैलेट फॉर्म में बनाइए और उनको सेल करिए। अच्छा, মানে আপনার এলাকায় পড়ে থাকা যে কোনো ওয়েস্ট যেটা ফ্রিতে পাওয়া যায় বা 1-2 টাকা কিলোতে পাওয়া যায় সেই জিনিসটাই আপনি এর মধ্যে দিয়ে দেবেন। দিলে এখানে প্যালেট ফর্মে এক ধরনের প্রোডাক্ট বের করে দেবে, যে প্রোডাক্টটা আপনার বিভিন্ন ভাটি, যেমন চানাচুর ফ্যাক্টরি হতে পারে, বিস্কুট কারখানা হতে পারে, বেকারি হতে পারে, তার পাশাপাশি ইট তৈরির জায়গা হতে পারে, এমনকি যেখানে জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগে মুড়ি তৈরির কারখানা হতে পারে। সমস্ত জায়গাতে আপনার এই প্রোডাক্টটা ডিমান্ড আছে, কারণ বর্তমানে কয়লা এবং তেল, পেট্রোল এগুলো কিন্তু সরকার ব্যবহার করতে কম বলছে এবং তৈরি করছে এগ্রিকালচার ওয়েস্ট, যার ডিমান্ড বাড়ছে। বলছে যে 10 to 15% আপনি এগ্রিকালচার ওয়েস্টের প্রোডাক্ট দিয়ে আপনারা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করুন। तो सब থেকে বড় বায়ার দাদা कौन है आज के? एनटीपी से पावर प्लांट जितने भी है इंडिया में, वो आज की डेट में सबसे बड़ा बायर है हिंदुस्तान में। हाँ। वो जो भी बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग पैलेट मशीन का, बायोमेट पैलेट मशीन, तो उनसे वो खरीदते हैं। अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट खरीदता है ये प्रोडक्ट। 8 रुपया किलो से लेके 10 रुपया 12 रुपया किलो डिपेंड करता है आपके कैलोरी के वैल्यू से, रॉ मटेरियल को। এই যে মেশিন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই মেশিন দিয়ে কি এই প্রোডাক্ট তৈরি করা যায়? नहीं यार, एक तो एडवांस प्रोसेस से पहले जो रॉ मटेरियल आपके पास है, हाँ। उसको पहले आप पाउडर फॉर्म में लाना पड़ेगा। अच्छा। विथ हैमर मिल्स। अच्छा। ओके। या अगर आपका वुड का जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है तो उसको वुड क्रशर यूज करिए। ठीक है। तो स्ट्रॉ वगैरह है तो आप इसमें कर सकते हैं, आपका जो हैमर मिल से कर सकते हैं। उसमें डस्ट पंप में लाइए। मतलब দুটো মেশিনের সঙ্গে লাগে, নয় হ্যামার মিল অথবা উড ক্রাশার, এই দুটো মেশিন দিয়ে ওটা আগে পাউডার ফর্মে আনতে হবে প্রোডাক্টটাকে। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं पैलेट बनाने के लिए। इसमें अच्छा। डाई मोल्ड ऐसे लगा हुआ है इसका अंदर। अच्छा। तो इसमें 6 mm, 8 mm, 10 mm का डाई आपको चाहिए, चेंज कर सकते हैं। अच्छा। और उसी फॉर्म में आपको पैलेट देगा ये। ओके, ठीक है। तो साइज कैसा रहता है, दिखने में कैसा होता है वो? देखिए ये इतने बड़े बड़े साइज होते हैं। अच्छा। और उसका काठी जैसा दिखता है? काठी जैसा दिखता है। हाँ। सिर्फ डाया बदलते रहता है। Okay। 6 mm, 8 mm, 10 mm से डाया बदलते रहता है। लेंथ फिक्स रहता है, इतना सा होता है। अच्छा। और वो आपका पैकिंग करके
कैरी करने में इजी होता है। मतलब वो जो वेस्ट है मान के चलिए 10 बाय 10 एक रूम में पूरा अब भरा हुआ है, तो वो छोटा एक जगह में आ जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाता है और इजीली आप उसको बोरी में पैक करके सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, इजी टू ट्रांसपोर्ट। ये इन्वेस्टमेंट कैसा है? हाँ। ये बिजनेस में प्रॉफिट कितना निकलेगा? हाँ, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो आपका जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे छोटा मशीन जो है इस रेंज में वो 100 kg से शुरू होता है पर घंटा में, पर घंटा। अच्छा, तो वो आपका 1.5 लाख में मिल जाता है वो मशीन। अच्छा, ठीक है, बढ़िया मशीन, बढ़िया कंपनी से लेंगे। उसके बाद आपका एक हैमर मिल लेना पड़ता है। हाँ। वो भी 1.5 से 2 लाख में आप ले सकते हैं, छोटा बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये दोनों मेजर है। हाँ। उसके थर्ड जो मशीन जरूरत है वो ड्रायर है। अगर आपके पास मॉइस्चर क्वांटिटी जो है वो 15% से ज्यादा है। अच्छा, वो जो पाउडर फॉर्म है उसको मॉइस्चर देखना पड़ेगा। कैसे देखेगा? उसके लिए हमारे पास मॉइस्चर टेस्टर हम देते हैं। अच्छा, ये वाला मशीन? हाँ, ये वाला मशीन हम देते हैं। ये मशीन के साथ आपको फ्री मिलेगा विदाउट एनी। গরমকাল শীতকাল এই সময় তো আমি ওয়েদারে নরমালি 15 ডিগ্রি চলেই আসবে, কিন্তু যখন বর্ষাকাল আসবে তখন তো ময়েশ্চার একটু বেশি থাকবে। তখন তো আমি কাজ করতে পারবো না। না, তো তখন আপনার ও ড্রায়ার लेते हैं একটা ড্রায়ার নিতে হবে। আচ্ছা, ওই ড্রায়ার ইউজ করলে তখন আমি ময়েশ্চার কন্ট্রোল করতে পারবো। মানে 15% এর নিচে ময়েশ্চার থাকলে তবে এটা দিয়ে প্যালেট তৈরি করা হবে, প্যালেটটা তৈরি হবে। আচ্ছা, ড্রায়ার আমি আরেকটা কিনি, তাহলে ড্রায়ারের পেছনে কিরকম ইনভেস্টমেন্ট আছে? ड्रायर मिनिमम 6 लाख, 5 to 6 लाख। 5 to 6 लाख छोटा मिलता है? छोटा मिल जाता है। अच्छा, उससे भी बड़ा मिल जाता है? उससे तो बड़ा बहुत है। ओके, छोटा बता रहा हूँ। अच्छा, তার মানে এখানে হচ্ছে 1.5 লাখ, ওখানে হচ্ছে 1.5 লাখ, 3 লাখ আর এদিকে 6 লাখ, মানে হচ্ছে 9 লাখ টাকার একটা কমপ্লিট সেটআপ লাগে। ড্রায়ার ছাড়াও দুটো মেশিন দিয়ে ব্যবসা শুরু করা যায়, মানে 3 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা শুরু করা যাবে। এবার আমি 3 লাখ টাকা বা 9 লাখ টাকা ইনভেস্ট করব, নিয়ার अबाउट 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করব। 10 লাখ, হ্যাঁ, তো 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলে আমার আউটপুট কি আসবে? আউটপুট কি আসবে? সি মার্কেট থেকে যে রেট আছে এখন 8 रुपीस, 10 रुपीस, 12 रुपीस, 14 रुपीस, इवन बॉम्बो जो असम वगैरह में होता है उसमें 16 रुपीस पर केजी मिल जाता है पैलेट का। अच्छा, तो डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट आप मान के चलिए 20% तो मिनिमम आपका प्रॉफिट है ही है। अच्छा, अब इट मे गो अप टू 30-40% डिपेंडिंग कि आप रॉ मटेरियल किससे में परचेज करते हैं। अच्छा, ब्रेक इवन कर सकते हैं? ब्रेक इवन कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा बिजनेस का मॉडल बताइए ब्रेक इवन करके। जैसे आपका जो रॉ मटेरियल है, आप वुड डस्ट ले रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होगा, वुड डस्ट का कॉस्ट ज्यादा होता है। ऐसे पराली है, जैसे स्ट्रॉ कहते हैं, वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। पैडी का जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ बचता है, वो सस्ते में मिल जाता है, बहुत सस्ते में मिलता है। तो डिपेंड करते हैं आप रॉ मटेरियल क्या लेते हैं, पर केजी क्या मिलता है रेट आपको, उसके ऊपर होता है। उधर से तो 2-3 रुपया में मिल जाएगा, खरीदेगा तो 3 रुपए 4 रुपए में मिल जाता है। वुड डस्ट थोड़ा हो सकता है कॉस्टली हो। ठीक है, ठीक है, वो आपको लेने के बाद आपका जो मेजर कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, सपोज इसमें 10 HP का मोटर लगा है या 20 HP का मोटर लगा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन होगा। जो सबसे छोटा मोटर है वो 7.5 किलोवाट का, अच्छा, सबसे छोटा मोटर है, तो उतने यूनिट लेगा, 8 यूनिट आपका 1 घंटे में खर्चा होगा। अच्छा, तो आप देखिए मल्टीप्लाई में आपका जो 8 रुपीज है या 7 रुपीज है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया। अच्छा, बाकी रॉ मटेरियल मानने इसमें आपने 100 किलो रॉ मटेरियल खरीदा तो 400 रुपया 500 रुपया जो भी आप रेट में खरीदा वो है, तो अराउंड 600 आपका ऐसे खर्चा हो गया। मैन पावर आपने 100 रुपीज अगर उसको दे रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो आपने मान लो 600 टोटल आपका खर्चा आ गया, टोटल ये सारी चीजें। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और अगर आपने 100 किलो निकाला तो एटलीस्ट अगर 8-10 रुपए में तो बेचेंगे, जो मिनिमम प्राइस है मार्केट में। अच्छा, अगर 10 रुपीज में तो आपका कितना हो गया, आपका 1000 रुपीज हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 600 रुपीज, तो आपका 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने बोला कि 40% प्रॉफिट आ ही जाएगा आपका। मैंने मिनिमम बोला तो वर्स्ट कंडीशन आपका 20% मिलना ही मिलना है। अच्छा, वर्स्ट कंडीशन में। ओके, ओके, तो 20% to 40% आपका मार्जिन है इसमें। যে 1 বছর যদি আমি মেশিন রান করি আমার কত টাকা এখান থেকে রোজগার আসা পসিবল আছে? अगर पर डे के देखे 10 घंटा अगर इसको चलाते हैं, ठीक है, 8-10 घंटा चलाते हैं, 2000 से लेके 4000 अपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया 1 घंटे में। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आप फिर उसको कितना चलाते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है। अगर 10 घंटा चलाएंगे तो आपको ये देके जाएगा 2000। अच्छा, पर डे हिसाब से 2000 से 4000 तक प्रॉफिट आएगा पर डे। अच्छा, साल में 300 दिन भी काम किया तो 3 × 4 3 4 12 लाख के आसपास प्रॉफिट आएगा। ये मशीन कितना साल का वारंटी कंपनी देता है? 1 साल का हम वारंटी देती है। अच्छा, ऐसे तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सॉलिड है, आपका MS में बना हुआ, तो इसमें कुछ डैमेज तो होने वाला नहीं है। सिर्फ आपका जो टियर एंड वायर होगा वो आपका जो रोलर है। अच्छा, हम दिखा सकते हैं, उठा के। अच्छा, ये रोलर है,
ये रोलर है। और अच्छा, ये कितना bond है। कैपेसिटी का रोलर है? ये अभी पर घंटा में कितना प्रोडक्शन देगा ये मशीन? ये अभी आपको 1000 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं, 1200 घंटा आप चला सकते हैं इसी सेटअप पे, इसी रोलर, इसी मोल्ड में। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, एक घंटे में प्रोडक्शन कितना होता है इसी मशीन में? इसी मशीन में जैसे ये जो है 200 किलो का प्रोडक्शन, ये वाला पर घंटे में 200 किलो देगा। जो ये जो मशीन है इसको कहते हैं कि फ्लैट डाई टाइप। अच्छा, ओके, दो टाइप का मॉडल आता है बायोमास में, एक आता है रिंग डाई, अच्छा, एक होता है फ्लैट डाई टाइप। अच्छा, ये फ्लैट डाई टाइप का मशीन है, ठीक है। ये फ्लैट डाई में कितना तक आता है? 500 केजी तक आप इसमें चला सकते हैं। अच्छा, अगर आपको बियॉन्ड जाना है, जैसे 1 टन 2 टन 3 टन पे जाना है, तो आपको बड़े मशीन पे जाने पड़ेगा। अच्छा, उसका जो टेक्नोलॉजी आएगा पैलेट का, उसको कहते हैं रिंग डाई टाइप। अच्छा, मतलब वो सीधा रहेगा? वो सीधा तो रहेगा। हाँ। और ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है, हाँ, हाँ। ये जो आपका देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, अच्छा। इसमें देखिए जो आपका आउटपुट है, हाँ। वो यहाँ से निकलता है। ओके, और जो रिंग डाई होता है वो आउटर पेरिफेरी से निकलता है। अच्छा, साइड से निकलेगा। निकलता है जो पैलेट का, उसी हिसाब से जैसे वुड डस्ट का कुछ अलग प्राइस होगा। पाइन का सबसे ज्यादा प्राइस होता है, क्योंकि बहुत कम उसका ये है, वेस्ट निकलता है। हाँ, आज परसेंटेज बहुत कम है, छाई অনেক কম বের হয়, ক্যালোরিক ভ্যালু ज्यादा है, उसमें अच्छा प्राइस मिल जाता है। আর আমাদের ওখানে আরেকটা জিনিস বলি, পাটকাঠি, এটার কিন্তু ছাই অনেক কম হয় এবং এর এনার্জি অনেক বেশি, এখানে আগুন অনেক বেশি দেয়, তো এটারও কিন্তু মার্কেটের দাম অনেক বেশি আছে। इवन आपका जो बाम्बू है, जो बांस है, ये भी अराउंड 16 रुपीज पर केजी बिक रहा है। अच्छा, पैलेट्स, सो वेरी गुड प्राइस है ना। ओके, ओके। तो डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल क्या है, तो उसी से प्राइस आपको मिलता है। মানে র মেটেরিয়াল হয়তো কেনা বেশি পড়লেও সেটা হয়তো বিক্রিতেও আবার বেশি দাম পাওয়া যাবে। ওকে, এই ব্যবসাটা করার জন্য মোটামুটি কতটা জায়গার প্রয়োজন? जगह देखिए, इसमें मेनली आपका जो मशीन है, आपका हैमर मिल है, एक ड्रायर है। तो अगर आपका जो रूम है, जैसे आपका मान लीजिए 15 बाई 15 या 20 फीट या 20 फीट अगर आपका रूम है, हाँ। तो आराम से तीनों मशीन आ जाएंगे। अच्छा, अरे गोडाउन चाहिए रॉ मटेरियल स्टॉक करने के लिए, तो आप थोड़ा बड़ा स्पेस लीजिए, जैसे कि आप 1000 स्क्वायर फीट पे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 1000 या 1500 স্কয়ার ফিট में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। এই মেশিন কারা কাদের বসানো উচিত বা কিভাবে করা উচিত সেই বিষয়টা আমার দর্শকদের একটু বলে দিন। बैठा नहीं तो कोई भी जो फार्मर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वेस्ट लेके काम करना चाहते हैं, तो उनका सराउंडिंग में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो दे कैन स्टार्ट इट, बिकॉज उसमें ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। अगर नियर बाई आपके विलेज में है, आसपास के विलेज में है, आपको मिल जा रहा है रॉ मटेरियल, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, कॉस्ट कम होगा, एंड उससे आप जो पैलेट बनाएंगे अपने गाँव में, तो वो बिकने में आपका मार्जिन अच्छा मिलेगा। कंपनी की तरफ से क्या हेल्प मिलेगा? कंपनी की तरफ से अगर आपका इंस्टॉलेशन के लिए हमें इंजीनियर बुलाने, हमारे इंजीनियर आएंगे, अच्छा, एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है, वो आपको पूरा चला के गाइड करके आएंगे। ओके, डिलीवरी वगैरह क्या रहता है? डिलीवरी हमारे यहाँ से जब आपका पेमेंट आ जाती है, तो हम ट्रांसपोर्टर के जरिए आपकी जो लोकेशन है वहाँ पहुँचा। अच्छा, सीओडी का कुछ ऑप्शन है आपके पास? नो, कोई अगेंस्ट पेमेंट है हमारे यहाँ। अच्छा, फुल पेमेंट होने के बाद ही जाएगा? हमारे कंपनी की तरफ से पूरा पेमेंट आ जाती है जो अकाउंट में, तब यहाँ से डिस्पैच होता है, बिल बन के चला जाता है। अच्छा, सेम डे डिस्पैच होता है, सेम डे। तो कोई आके लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं? वो भी ले सकते हैं यहाँ आके डायरेक्ट। आपको अगर विश्वास नहीं है, तब आइए, सीधा मशीन देखिए, पेमेंट करिए, आपके सामने बुकिंग हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट में बुकिंग हो जाएगी, आप जो एड्रेस देंगे वही चला जाएगा। আচ্ছা, ওকে। তো এটা আপনার কাছে তো দুটো অপশনই আছে, আপনি এসেও নিতে পারবেন, আপনি অনলাইনেও নিতে পারবেন। যারা এই ধরনের নতুন ধরনের ব্যবসা করতে চাইছেন, আজকে কিন্তু তাদের কাছে একটা বিরাট বড় অপরচুনিটি। কেন স্ক্রিনের পরে ফোন নাম্বার রয়েছে, ডাইরেক্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন, এবং আপনি কোন ধরনের সেটআপ বসাতে চান সেটা নিয়ে ডিসকাস করুন, আপনাকে টোটাল হেল্প করবে কোম্পানি। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে চলে আসবো, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।